Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your political science teacher. Arman beta video on, and today we are going to read next. So before going to next, let me recall the previous topic which we have done. Okay, am I audible? Show me thumbs up if I am audible. Okay, thank you my dear. So now we are going to do whatever we have done yesterday, recapitulation. Yesterday we have done, or day before yesterday we have done about the Cold War. I have given you the definition as well as the explanation about the Cold War. What was that? The war was between two big countries, super powerful countries, America and the Soviet Union. The war was regarding ideologies. Both the countries were saying that their ideology is best and they want to be superior to the other and to other countries also. So this was the reason of Cold War. Then we have done Cuban Missile Crisis. Cuba में missiles छोड़ दी सोवियत यूनियन ने, and then अमेरिका ने थ्रेटन करा सोवियत यूनियन को, और सोवियत यूनियन एग्रीड फॉर दैट और उसने अपनी मिसाइल क्यूबा से हटा ली. क्यूबा में मिसाइल, क्यूबा में वॉर नहीं हुई, मीन्स कोल्ड वॉर ही रही दोनों में. इट नेवर एस्केलेट इनटू हॉट वॉर. Actually, they have adopted the policy of the logic of deterrence. Deterrence क्या होता है? Can you tell me deterrence? कल मैंने बताया था. सुखमन, unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ सुखमन, what is deterrence? ये ऐसे नहीं, फिर ऐसे स्माइल करके नहीं. मुस्कान, unmute yourself. Yes, ma'am. You are not audible. अनम्यूट करो मुस्कान. नहीं कर Yeah, ma'am. अरमान, वीडियो ऑन. Now try मुस्कान. Now I am audible. Okay, just wait. Just wait. चलो ये शायद ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं. डेटरेंस मैं ही बता देती हूँ, सुखमन बच गई. So deterrence means that kind of logic, that kind of policy in which both the parties are afraid about the fight. दोनों को ये लगता है कि इसके साथ लड़के मेरा ही नुकसान है, इसके साथ लड़के का मेरा कोई फायदा नहीं है, तो they adopted deterrence. While adopting deterrence, it means they will never attack on anyone. वो किसी पर भी अटैक नहीं करेंगे, तो उसको deterrence कहते हैं. Further, now open your book. I'll read for you. हाँ जी, open your book, chapter Cold War. Yes, chapter Cold War. I am having page number beta. What is Cold War that we have done? Page number 3. Page number 4. Last paragraph, note the main military features. Got it? Show me thumbs up if you got it. Yes, thank you so much. Now I am going to read.
Note the main military features of Cold War. The two superpowers and the countries in the rival blocks, दोनों के दोनों ब्लॉक यानी कि सोवियत यूनियन और SU, US, expected to behave as rational as responsible actors. They were to be rational and responsible in the sense that they understood the risk of fighting wars that might involve the two superpowers. दोनों डरते थे इस चीज को लेकर. When the two superpowers and the blocks led by them are in deterrence relationship, जब वो deterrence में आ गए कि दोनों fight नहीं करेंगे, fighting wars will be massively destructive. तो फिर और ज्यादा destruction होनी थी अगर वो दोनों fight करते. Responsibility therefore meant being restrained and avoiding the risk of another world war. तो risk खत्म हो गया, तीसरी world war नहीं लगी. In this sense, Cold War managed to ensure human survival. इंसान बच गए, नहीं तो बहुत ज्यादा खराबी होनी थी, human survival नहीं रहनी थी. So this is deterrence. कल वाले थोड़ा सा मैंने पढ़ाया. Next चलो, the emergence of two power blocks. Emergence का meaning लिखो beginning. Write down its meaning beginning. The two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. देखो कोल्ड वॉर जो होती है ना, अंदर की लड़ाई, अंदर की जेलसी, वो खत्म नहीं होती है. चाहे इट नेवर एस्केलेट इनटू हॉट वॉर, लेकिन फिर भी अंदर से अंदर इनमें जेलसी चलती. दे वर फाइटिंग विद ईच अदर फ्रॉम इनसाइड. दे वर जेलस फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम इनसाइड. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? इन द वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन टू अलायंस सिस्टम. दो अलायंस बन गए, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस. वेस्टर्न अलायंस वाज हेडेड बाय यूएस एंड ईस्टर्न अलायंस वाज हेडेड बाय सोवियत यूनियन. A state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of other superpower and its allies. The smaller states in the alliance used the link to the superpowers for their own purpose. अब जो छोटी-छोटी स्टेट इनके साथ जुड़ गई थी, वो अपने मतलब के लिए जुड़ रही थी. अब हमें भी अच्छा लगता है अगर कोई पावरफुल बंदा हमारा फ्रेंड है, मुझसे दोस्ती बना कर रखते हैं, तो छोटी स्टेट इसलिए बड़ी स्टेट के साथ जुड़ गई थी. They get the promise for protection, weapon and economic and aid against their local rivals. तो बड़े देश भी छोटे देशों के साथ प्रॉमिस करते थे कि अगर कभी आपको जरूरत पड़ी ना, तो हम आपकी मदद करेंगे. कैसे करेंगे? Here they have written promise of protection देंगे, वो weapons देंगे, economic aid देंगे, ताकि वो local rivalry से बच सके. इस प्रॉमिस पर they have started to helping each other. Mostly regional neighbors with whom they had rivalries. अब मान लो हम इस यूएस के साथ जुड़ते हैं, अमेरिका के साथ जुड़ते हैं, तो अमेरिका हमें प्रॉमिस करेगा कि आप मेरे साथ हो, मैं भी आपकी प्रोटेक्शन का प्रॉमिस करता हूं. अगर पाकिस्तान चाइना आप पे अटैक करेगा तो मैं इंडिया तेरी मदद करूंगा. तो इस चक्कर में बड़े देश भी छोटे से जुड़ गए, और छोटे देश तो हमेशा ही, बड़े देशों को, हम रशिया को हमेशा फ्रेंड बनाना चाहते हैं. ठीक है. The alliance system led by the two superpowers therefore threatened the divided to entire world into two camps. इस तरह पूरी की पूरी दुनिया दो कैंप में बट गई, वेस्टर्न कैंप और ईस्टर्न कैंप. जब दोनों की दोनों ग्रुप्स में पूरी की पूरी दुनिया बट गई, देन व्हाट वाज द रिजल्ट? कुछ एक कंट्रीज इधर आ गए, कुछ एक कंट्रीज इधर आ गए. ठीक है. नाउ दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप. ये पहली बार ऐसा हुआ था, और ये कब हुआ था? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. This division happened first in the Europe. Most countries of the Western Alliance sided by US. याद रखना, US Alliance Western में था. Those of Eastern joined with the Soviet camp. वो Soviet camp में जुड़ गए. That's why these were also called Western and Eastern Alliance. ठीक है. Western में अमेरिका हेड है और Eastern में Soviet Union head है. Right. Now start writing question. Open your copy. Write down today's date. What is Western Alliance? और दूसरा क्वेश्चन लिखो what is Eastern Alliance, और इनमें कंट्रीज और लीडर लिखने शुरू करो. कंट्रीज मत लिखो, सिर्फ लीडर लिख दो. नहीं.
Yes, ma'am. Done beta both the things. Now start revising whatever we have done yesterday and day before yesterday. बाकी का काम बाद में लिखवाती हूँ और पढ़ती भी हूँ. ठीक है? Take 2-3 minutes, revise Cold War definition and features. 10 features within 2-3 minutes. Just a hint only. Then I will listen hint from you. Okay? 2 minute लो और any 5 features. You can revise any 5 features. अरमान सुनने वाली हूँ मैं अभी आपसे. Right? Take your time, 2 minutes. 5 features plus definition. डन बेटा. अरमान एक एक फीचर पूछने वाली हूँ मैं सबसे. टेक 1 minute मोर. ठीक है? 1 minute मोर. चलो टाइम आप बेटा. नाउ टेक अ न्यू पेज. एक रफ पेज मुझे दिखाओ. अपनी ही कॉपी का लास्ट पेज निकालो. वेरी गुड. राइट डाउन टुडेज डेट ओवर हियर. क्लोज योर बुक. बुक क्लोज कर दो बेटा. राइट डाउन टुडेज डेट 17 मार्च. वेरी गुड. अरमान थोड़ा जल्दी कर. इसे लेजी ना बन बेटा. हाँ जी. क्वेश्चन इज व्हाट इज कोल्ड वॉर. व्हाट इज कोल्ड वॉर. एक्सप्लेन एनी 5 features. What is Cold War? Explain any 5 features. चलो लिखना शुरू करो बेटा इसका आंसर. वीडियो ऑफ मत करना एंड आई एम ऑब्जर्विंग यू. ठीक है? स्टार्ट राइटिंग. पहले इसका मीनिंग लिखो, डेफिनेशन लिखो, देन 5 पॉइंट्स. स्टार्ट बेटा. Muskan, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay. Are you comfortable while writing beta? Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you.
Arman, good morning. गुड मॉर्निंग। अपनी कॉपी दिखाई मुझे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ईशा लेट हो गई बेटा, तुम है ना? चलो कोई बात नहीं। They are writing definition and meaning of Cold War, then 5 features. आप भी करो शुरू बेटा। अच्छा, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक डेफिनेशन लिख देना, लिख सकते हो तो। अब चलो, अब रहने दो, अब अपने फीचर्स शुरू कर दिए होंगे। या फ्लेमिंग की एक एक बताई थी मैंने। चलो कोई बात नहीं, फीचर्स ही कर लो पहले कंप्लीट। ईशा है ना कल जहाँ फीचर लिखे थे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ ना दोबारा, अगर क्लियर नहीं है तो। What is Cold War? Explain any 5 features. ओके, तो इसमें आप सबसे पहले डेफिनेशन दे रहे हो जब आप आंसर लिख रहे हो। नहीं, पहले आप मीनिंग दोगे इसका, फिर उसके बाद आप इसका डेफिनेशन दोगे, देन यू विल राइट फीचर्स। ठीक है? Done beta? Show me thumbs up if you have done it. Okay? चलो, now stop writing. Whatever you have written, show me. Stop writing. सुखमन, show me copy. कैमरा क्या ऐसे दिखा दे बस. Good. Good बेटा, good. Very good my dear. मुस्कान, show me your copy. ऐसे कैमरा क्या दिखा दे मुझे. ओके, ठीक है. अरमान, show me your copy. ठीक है बेटा, राइट बेटा. चलो, नाउ वी विल रीड फर्दर. हाँ जी मुस्कान, शुरू करो बेटा पढ़ना आगे. स्टार्ट रीडिंग फर्दर बेटा.
The Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization, which came into existence in April 1949. It was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. Each of these states would be obliged to help the other. The Eastern Alliance, known as the Warsaw Pact, was led by the Soviet Union. It was created in 1955 and its principal function was to counter NATO's force in Europe. Yes, thank you very much for reading. ये पहले ध्यान से सुन लो, very important question. Even this question information is related to this map. ठीक है, ये मैप भी मैं आपको करवाऊंगी, आज ही करवा दूंगी, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ना, उसने इन्फॉर्मेशन पढ़ी मुस्कान ने। The Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization. Now you have read बेटा two groups ना, Western और Eastern. जो वेस्टर्न ग्रुप था वो नाटो बन गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो ईस्टर्न ग्रुप था वो वॉर्सो बन गया। वॉर्सो इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है। वॉर्सो में बैठकर उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। मतलब वही दो ग्रुप हैं आपके, ईस्टर्न और वेस्टर्न, बट नाम उनके दूसरे भी रख दिए गए, नया नामकरण कर दिया। आप कह लो कि दो नाम रख दिए, नाटो अमेरिका उसके ग्रुप्स, और वेस्टर्न ईस्टर्न अलायंस वॉर्सो, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद इसने पढ़ा विच केम इनटू एग्जिस्ट इन अप्रैल 1949 में नाटो बन गया था अमेरिका का। हाईलाइट कर लो योर 1 मार्क आंसर। इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स। लो जी, इसमें 12 देश और आ रहे हैं। ये 12 देश अमेरिका के साथ जुड़े हैं और इन्होंने प्रॉमिस किया जब जब आपको जरूरत पड़ेगी हम आपस में इकट्ठे होकर एक जने की हेल्प करेंगे जो मुसीबत में होगा। और हाँ, अगर किसी एक पर बाहर की किसी कंट्री ने अटैक करा तो सब सारे 12 के 12 देश इकट्ठे होकर उसकी हेल्प करेंगे। ये फैसला हुआ, नाटो का हेड था इसका अमेरिका, 12 कंट्रीज में शामिल थे। नेक्स्ट, which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as attack of all. अगर किसी एक पर हमला हुआ तो समझा जाएगा कि सब पर हमला हुआ, ठीक है। So North America would be regarded, each of these states would be obliged to help each other. Promise ये करा गया, सारे देश आपस में मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करा करेंगे। ये बात हो गई वेस्टर्न अलायंस की। आप इसको ब्रैकेट में रख लो, यहाँ तक, अदर तक, और यहाँ एक हेडिंग बना लो अपने हाथ से, वेस्टर्न अलायंस। यहाँ ऊपर लिखा है, उसी को हाईलाइट कर लो बेटा। एक ना हाईलाइटर लो, अब आप ना एक हाईलाइटर लेके रखो अपने पास, अगर है तो अभी जो टाइम लगा दोगे आप निकालते हुए। वेस्टर्न अलायंस को हाईलाइट कर लो। अब मैं ईस्टर्न अलायंस पढ़ रही हूँ। Eastern Alliance, known as the Warsaw Pact, was led by Soviet Union and it was created in 1955 and its principal function was to counter NATO force in Europe. और इसका पहला काम ये था कि नाटो वाले कंट्रीज को हमने हराना है और काउंटर करना है यूरोप में। यूरोप में वो वाले कंट्रीज ना आए। डन बेटा, ठीक है। अब एक बार मैं वाइंड अप कर रही हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो सब हौच-पौच हो जाएगा। आराम से पढ़ेंगे जितना हमें समझ आएगा। सो टुडे वी हैव डन 2 काइंड ऑफ अलायंसेस, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ठीक है। वेस्टर्न बन गए थे नाटो, कब बने थे ये आपने लिखा और उनका फंक्शन क्या था ये आपने पढ़ा। उसके बाद था ईस्टर्न अलायंस, सोवियत यूनियन इसका हेड था। ये कब बना? 1955 में, और इसका मेन फंक्शन क्या था वो आपने पढ़ा कि नाटो को वो परे रखेगा। Done 3 things. Now मैं अनम्यूट कर रही हूँ। ईशा, अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, ma'am. अच्छा, पहले मुझे ये बताओ why you were late? Ma'am, I was taking bath. अच्छा चलो ठीक है, कोई बात। अच्छा मेरी बात सुनो, दोनों आपको ग्रुप्स क्लियर हो गए बेटा? मैम जो कल किए थे that is clear. But आज वाला मैंने सिर्फ यही कहा कि वेस्टर्न बन गया नाटो और ईस्टर्न बन गया वॉर्सो। कब बना एक ये चीज याद रखनी है, क्या फंक्शन था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, एक चीज याद। योर 2 मार्क्स आंसर। So today you have done 2 questions.
लिखना मत, आज कॉपी पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली यू विल लर्न फ्रॉम हियर ऑन। ठीक है बेटा ग्रेड 12, आज हमने ये वाले क्वेश्चन कॉपी पे नहीं लिखने हैं। हाँ मुस्कान, मैम समझा दो, ये वाली दोनों चीजें, फंक्शन समझा दो इसके एक बार। फंक्शन, लो सुनो भाई, एक ग्रुप बना, मान लो एक मुस्कान है, मुस्कान का एक ग्रुप बना, एक रीटा मैम का ग्रुप बना, ठीक है। मुस्कान अमेरिका में है, मैं सोवियत यूनियन में, ठीक है। मुस्कान ने अपने ग्रुप का नाम रखा नाटो, और मुस्कान ने क्या किया, बाकी ग्रेड 12 के 12 बंदों को साथ जोड़ लिया, और तेरा ग्रुप बना 19, कब बना था नाटो, 1949 में तेरा ग्रुप बना, ठीक है। और तेरा काम ये है कि सारे ग्रेड 12 के 12 बंदे जो होंगे ना, वो आपस में प्यार से रहेंगे, और किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अगर ये 12 बंदों पर मुस्कान ने सोचा, और जो उसने 1949 में बनाया, नाटो बनाया, अगर इन 12 बंदों पर कोई ग्रेड 10 का अटैक करेगा या ग्रेड 11 का अटैक करेगा, तो सारे आपस में मिलकर रहेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। एक बंदे पर अटैक माना जाएगा कि सब पर अटैक करेगा। ये नाटो था। रीटा मैम का ग्रुप कौन सा है, वॉर्सा, और मैं कौन हूँ, मैं सोवियत यूनियन हूँ, ठीक है। मैंने अपना ग्रुप बनाया 1955 में, और मेरा फंक्शन ये था कि मुस्कान को और उसके ग्रुप को परे रखना, बस। यूरोप में नहीं आने देना, उसको कॉरिडोर में नहीं आने देना। मैंने आपको आपके लेवल पे समझा दिया, स्कूल के लेवल पे, ये दो ग्रुप, ठीक है बेटा। ओके, तो ये वाले दोनों ग्रुप बने। बस आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे, सो दैट दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर। और हाँ, एक आपका होमवर्क क्या है, आज लिखना कुछ नहीं है, यू विल नॉट राइट एनीथिंग। आपने जितने मैंने 1.5 पेज पढ़ाया, द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, किस तरह 2 ग्रुप बने, 2 ब्लॉक बने, और फिर मैंने आपको ये अगला पेज पढ़ाया जहां पर मैप था। मैप करवाना था मैंने आज, पर नहीं करवाऊंगी, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव डन दीज 2 ग्रुप्स, डायरेक्टली यू विल लर्न फ्रॉम, कॉपी पे आज कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक नजर मारना मैप पे, करेंगे नहीं, जस्ट टेक अ लुक। अब 12 बंदे मुस्कान के पास है, अमेरिका के पास है, नाटो के पास है, मेरे पास वॉर्सा है, और मैं सोवियत यूनियन हूँ, मैं 55 में बना था, और मेरा काम है मुस्कान नाटो के ग्रुप को पढ़े। अब आप देख सकते हो येलो कंट्रीज, दोज येलो कंट्रीज आर फर्स्ट वर्ल्ड। अब जहां पर लिखा ना फर्स्ट वर्ल्ड, अपने हाथ से लिख लो वहां पर अमेरिका, यूएस, नाटो। अरमान लिख बेटा। जो लिखा सेकेंड वर्ल्ड, वहां पर मेरा लिख लो वॉर्सा, सोवियत यूनियन। ठीक है। अच्छा, एक ना नाम और रखना इसका, हमने वो कल रख देंगे, ठीक है। मुस्कान वाले अमेरिका वाले ग्रुप का भी एक नाम रखना है, एक मेरे ग्रुप का भी नाम रखना है। जो मुस्कान की सोच है वो उसका नाम रख देंगे, जो मेरी सोच है वो मेरा नाम रख देंगे, ठीक है। वो कल करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आज, ठीक है। अच्छा, जहां लिखा है थर्ड वर्ल्ड, वहां पर आप लिख लो नाम, NAM, कैपिटल लिखना, non-aligned movement. Now some of the countries are in first world, rest of the countries are in second world, but जो third world वाली countries थी ना, जैसे कि इंडिया, वो किसी में भी शामिल नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह 3 दुनिया बन गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। येलो वाले सारे कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड के हैं, अमेरिका के हैं, 12 के 12 कंट्री। सेकेंड वर्ल्ड कंट्री रेड वाले पोर्शन है, सोवियत यूनियन। मैं कंट्रीज के नाम बताऊंगी तब, व्हेन वी विल डू मैप। देन ग्रीन, आपको दिख रहा है इसमें इंडिया दिख रहा है, छोटा सा ग्रीन इधर से दिख रहा है ना, इंडिया है ना, श्रीलंका भी दिख रहा है ना। तो ये ग्रीन वाले वो थे जो दोनों में शामिल नहीं हुए, हमने किसी में शामिल नहीं हुआ 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। अच्छा सुखमन, मुझे ये बताइए जरा, हम क्यों, अनम्यूट करो पहले, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं क्लास फाइंड अप कर दूंगी। सुखमन, इंडिया क्यों नहीं गया ना फर्स्ट वर्ल्ड में, ना सेकंड वर्ल्ड में, ना वार्सा में, ना नाटो में, ना सोवियत यूनियन में, ना अमेरिका में? हम क्यों नहीं गए तब कहीं? अनम्यूट योरसेल्फ।
ऑडिबल नहीं है तू, ऑडिबल नहीं है मेरा बेटा। चल ईशा तू बता, ईशा को अनम्यूट कर। I don't know. बेटा क्यों, मैंने तो ये बताया हुआ था। चल अरमान तू बता, इंडिया क्यों नहीं गया किसी ग्रुप में? अनम्यूट करो। हाँ बेटा। नहीं पता पता, नहीं। नहीं पता ये बात। चलो देखो, समझ नहीं आ रही आपको तो मुश्किल हो जाएगी। मुस्कान बेटा, व्हाई इंडिया डिडंट ज्वाइन एनी ग्रुप बेटा? मैम क्योंकि तब टाइम पे ना मतलब अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को, तो वो अपनी थिंग्स से रिकवर कर रहा था। तो अगर वो शामिल हो जाते उन कंट्रीज में, तो अगर वॉर लग जाती तो उनका ही नुकसान होना था फिर, इसलिए फिर ऑनलाइन मूवमेंट को किया था। Thank you, my dear. I am proud of you. 1945, Second World War finished. We got independence 1947. 2 साल तक तो हमें खुद ही होश नहीं थी। अभी सब वो सारा पेंडेमिक कंडीशन चल रही थी, खुद ही हम ट्रॉमा में थे, इंडिया पाकिस्तान बन गया था। और वैसे भी इंडिया की तो नेचर ही यही है, हम लड़ाई झगड़े में कभी भी नहीं जाते। ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए थे, ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गए थे। थर्ड भी अगर होती है, भगवान ना करे, हम किसी के साथ नहीं है, हम सिर्फ अपना मुल्क देखते हैं। सो दैट्स व्हाई इंडिया नेवर जॉइंड एनी ग्रुप। अच्छा सुखमन, आइंदा मैं क्वेश्चन पूछूं ईशा या अरमान, तो मुझे याद आप आंसर दोगे कि व्हाई इंडिया हैव नॉट जॉइंड एनी ग्रुप। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। अब जितना मैंने पढ़ाया 1.5 पेज अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, लर्न कर लेना। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।